Hi dear, welcome to EI Spoken English Production. Today we are going to do this lesson is for the kids. ये सब बच्चों के लिए है. बाज़ राय से मुझे पता चला है कि हमारे चैनल पे जो असबाक हैं वो बच्चे भी बड़े शौक़ से सुनते हैं. सो मैंने उनके लिए एक लेसन तरतीब दिया है जिसको आप वोकैब कह लें या कुछ ऐसे अल्फाज है जो आपके रोज़मर्रा काम आएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फबिंग ये वर्ड एक्सट्रैक्ट किया गया है 2 वर्ड से. नंबर 1 फ़ोन, नंबर 2 स्नब. सो फोनिंग एंड स्नबिंग को कलेक्ट किया तो फबिंग फ़ोन, स्नबिंग फोनिंग दोनों को एक्सट्रैक्ट किया तो ये क्या बना? फबिंग. यानी बात करने वाला बातें कर रहा है, आप फ़ोन पे मुतवातर लगे हैं, सोशल नेटवर्क्स पे शेयरिंग, कमेंटिंग, लाइकिंग, पोस्टिंग, अपलोडिंग. हे आर यू फबिंग मी? यानी इग्नोर करना. और फबिंग अगर तो इग्नोर किया वैसे तो वो इग्नोर हुआ, अगर तो मोबाइल के दौरान आपने इग्नोर किया तो फिर आप फबिंग कर रहे हैं. वाई आर यू इग्नोरिंग मी? वाई आर यू फबिंग मी हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग्स. इफ़ समवन इज सेइंग यू वाई आर यू फबिंग मी मीन्स कि आप मोबाइल पे लगे हुए हैं और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं. स्लीपिंग इन देर तक सोए पड़े रहना, सुबह तक. सो स्लीपिंग इन लेट उठना, देर तक सोए रहना. और स्टेइंग लेट रात देर तक जागते रहना. द फर्स्ट वर्ड इज गॉसिपिंग. तो बच्चों गॉसिप एक वर्ड है जिसका मतलब है गपशप. गॉसिपिंग एक ऐसी आदत है जो अफवाह फैलाना भी कहलाता है या कान में कुछ कहना. सो गॉसिपिंग, शी इज़ सो गॉसिपिंग. वो बहुत ज़्यादा गप्पी है, वो बहुत ज़्यादा झूठी खबरें देती है, वो बहुत ज़्यादा कान भरती है. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सिपिंग कॉफ़ी. लाइक वी टेक टी, जैसे हम चाय पीते हैं इसी तरह कॉफ़ी को सिप किया जाता है. सो सिपिंग कॉफ़ी. What do you do at 4 o'clock in the afternoon? In the afternoon, I sip coffee. Sipping coffee is also a habit. We can say, काफ़ी या चाय पीते रहने वाला. This boy is coffee sipping या फिर this boy is sipping coffee. ये लड़का काफ़ी पी रहा है या फिर ये लड़का कॉफ़ी पीता रहता है. कॉफ़ी पीता रहता है, कॉफ़ी सिपिंग. कॉफ़ी को पी रहा है, sipping coffee. The next word is fidgeting. The fidget word, when you come to know, it means you are feeling fidget. So fidgeting, बेचैन होना, बेताब होना. Why are you fidgeting? आप क्यों बेचैन हो रहे हैं? आप क्यों बेताब हो रहे हैं? Such as anxiety is also a word used for fidgeting as a similar. The next word is nail biting. Nail biting is also known as fidgeting. When some person is feeling the fidget, he is going to bite his nail. So biting nails with your mouth is like a nail. It's not a good habit. So he bites his nails. वो अपने नाखून चबाता है. The pen clicking with a tick 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 is not a good habit. So she clicks her pen. This is known as pen clicking. The losing temper is a short version of a person who gets angry as most. He gets off his skin. It means he is losing his temper. गुस्से में आ जाना, जल्द गुस्से में आ जाना, अपने आपे से बाहर होना. Why are you losing your temper? आप क्यों गुस्सा हो रहे हो? When someone is getting mad means he is losing his temper, so avoid. The next word is sunbathing. So the sunbathing, such as here in Pakistan, people need not to bath the sun, but in winter they need to bath with the sun. So sunbathing is like having a gauge of sun. So sunbath, धूप लेना. They are sunbathing. वो धूप में बैठे हुए हैं. Staying late. Staying late mean to stay the whole night without sleeping. रात देर तक जागते रहना, staying late. Staying late is not a healthy habit. Daydreaming is
you can say a phantasm, a person who is having a dream at the daytime without sleeping. Having a dream is also known as daydreaming. She is lost in daydreaming. तख़य्युलात में, ख्यालात में ख्याल आना, सोचते रहना is known as daydreaming. The word is lack punctuality. Lacking punctuality is a word used for the person who has no respect of the time. He is not punctual. He is kinda irregular. So the person who is irregular, we can say he is lacking punctuality. ऐसे लोग भी हैं जो वक्त की बेकदरी करते हैं, वो कहलाते हैं lacking punctuality. Such as your son is lacking in punctuality. आपका बेटा बहुत वक्त की बेकदरी करता है, punctual to the minute नहीं है. Lying, that second meaning for lying is lying excuses. झूठे बहाने बनाना, झूठ बोलना. Lying, झूठा बहाना बनाना. एक फिल्म थी पिनोकियो जिसमें नाक बढ़ता है जैसे ही वो झूठ बोलता है. उस बच्चे का वो कार्टूनाइज्ड फिल्म थी, एनिमेटेड फिल्म थी, जिसमें वो पिनोकियो नाम का लड़का है. तो हम ये भी कह सकते हैं डोंट बी पिनोकियो, यानी झूठ मत बोलो, झूठे मत बनो. पिनोकियो एक लड़का है, वो जैसे ही झूठ बोलता है उसका नाक बढ़ता जाता है. सो इसको एक आइकॉन सा लिया गया है, ऐसा आइकॉन झूठ बोलने का जिसमें लाइंग नाक बड़ा होता है, तो मीन्स कि वो झूठ बोल रहा है. ऐसा आइकॉन अगर आपको दिखाई दे तो वो उसका टाइटल ये होगा लाइंग एक्सक्यूजेस टेलिंग अ लाई. द वर्ड इज प्रोक्रेस्टिनेट. Procrastinate word is used for a person who is delaying in everything, such as he has given a task to do. What he does is he thinks, should I do now or later? If it is possible to do it now, why not if I do it later? So he takes on later. Anything that can be done now is known as later in his dictionary, so that man is kinda procrastinate. That man is procrastinating. We can say as a verb टाल मटोल करना, मुलतवी करना, ताख़ीर करना, कोई काम वक्त पे ना करना, बाद में करने की ऐसी आदत लोगों में होती है. Procrastinate verb है, और अगर इसको एज अ नाउन इस्तेमाल करना है तो इसके लिए gerund verb का इस्तेमाल कीजिए, तो वो ing का इस्तेमाल, जैसे procrastinating यानी ताख़ीर करने वाला. The next word is eating junk food. लज़्ज़त भरा मगर हल्का, जिसका कम फ़ायदा हो, ऐसा खाना जंक फूड कहलाता है. उसको खाना ईटिंग जंक फूड. Getting into fights, of course, to get into quarrel, to make a clash. Bragging, शेखी बिगाड़ना, जैसे बूस्ट करना, बूस्टफुली बोलना कि मैं बहुत कुछ हूँ, अपने आप को बड़ापन दिखाना. Bragging, शेखी बिगाड़ना. Bargaining, as the time when you need some less in the things according to real value, we need to decrease the price, is known as bargaining, to make negotiation while you are buying something. Picking nose is the bad habit in an animated film. A person as a monkey, what he's doing is that he puts his spoon into his nose. As you know, you can read the meaning. आप इसका उर्दू में मतलब देख लीजिए. Picking nose, sitting all the day, सारा दिन बैठे रहना. Sitting all the day. His husband is an idol because he is sitting all the day. The cracking knuckles is not a good habit to make the knuckles of your fingers. It means cracking knuckles. And the second thing is found in the girls here and everywhere in the world, twirling hair. Twirling hair. It's not a good habit, but might be sometime when you are fidgeting, when you are anxious or worried, that means you are twirling hair. Slouching. Slouching ऐसा तरीका जिसमें बैठे हुए लेटना. एग्जामिनेशन हॉल हो, क्लासरूम हो, स्कूल में बैठे हों या फिर घर में हों, तो बाज़ औक़ात लोग इस तरह से बैठे होते हैं जैसे पंचायत में फ़ैसला करने वाला वही होता है जो चीफ होता है.
Shaking hands and legs is also a habit that I'm giving you. It's known as shaking hands and legs. हाथ पाँव हिलाना, हिलाते रहना. Shaking hands and legs. Cursing, बकते रहना, बातें तो करते रहना, लेकिन दौरान टॉकिंग आप क्या करते हैं? ड्यूरिंग आप गालियाँ भी दे रहे होते हैं, तो ये कर्सिंग कहलाता है. कर्स का मतलब वैसे भी है गाली देना, बकना, फजूल बात करना. तो बातें दूसरे तरह से हो रही होती हैं, लेकिन ड्यूरिंग हिज डिस्कशन ही नीड्स टू इंक्लूड सम टेस्ट ऑफ हिज टॉकिंग. व्हाट ही डज, he uses abuses. What he does, he speaks and uses the cursing. So cursing, बात करते हुए गालियाँ बकना. The next word is slacker. Slacker is an adjective that is known as a person who is kind of ढीला, सुस्त रवि से काम करने वाला. हमारे यहाँ इसको ढीला ढक्का भी कहा जाता है. ऐसा बैल जो ढीला हो. That's all for now. Thanks for being with the A. Do not forget to like, subscribe, share and comment what you want. और वो लोग जो अपने बच्चों के हवाले से कुछ इंग्लिश सीखना चाहते हैं या अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, कमेंट में रब्ता कीजिए और मुझे बताइए कि आपको इंग्लिश का किस हवाले से लेसन सीखना है, पढ़ना है. उस हवाले से मैं आपके लिए हेल्पफुल होऊंगा इंशाल्लाह. सो टेक द टाइम. थैंक्स फॉर बीइंग विद द A.